students. I welcome you all in the new session of Haryana EduShrit. I hope you are learning and understanding the concepts you have done in earlier classes. Myself Archana Arora, PGT Chemistry from GHS Rice, Sonipat, Haryana. We are dealing with important organic reactions and conversions for class 11th organic chemistry. These conversions and reactions are not only important for 11th standard, these all are very important for 12th standard as well. Objectives which we are dealing with this session are Wurtz reaction, Fittig reaction, Wurtz-Fittig reaction, hydration reaction, dehydration reaction, beta elimination reaction, Markovnikov's rule, anti-Markovnikov's rule, Friedel-Crafts alkylation, Friedel-Crafts acylation, decarboxylation reaction. Wurtz reaction, the reaction in which alkyl halides on treatment with sodium metal in dry ether solution gives higher alkane. Rx means alkyl halide when reacts with sodium metal in the presence of dry ether, it gives alkane of higher member with sodium halide. For example, if we take methyl chloride with sodium metal and 2 molecules of methyl chloride in the presence of dry ether, sodium reacts with chlorine, attracts chlorine and forms sodium chloride, and methyl both react together and forms ethane. Double of parent haloalkane, double carbon of parent haloalkane is formed here. Fittig reaction, the reaction in which aryl halides on treatment with sodium metal in dry ether solution gives higher aromatic compounds. In this we are taking, instead of methyl chloride, here we are taking aromatic halide, and in the presence of same sodium metal with the dry ether, it forms methyl. Instead of methyl and methyl reacts, there reacts benzene and benzene both connected together and forms diphenyl, or we can say biphenyl, with the presence of sodium chloride. Wurtz-Fittig reaction is the combination of Wurtz and Fittig reaction. In this, the reaction of aryl halides with alkyl halides in the presence of sodium metal and dry ether to give substituted aromatic compounds. Let me clear you these topics on board as well, so that I can make your understanding and concepts more easier and in some interesting and tricky way. तो अब उसी को हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में लेते हैं. हम क्या करते हैं, वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन और वुड्स फिटिग को जरा दूसरे स्टाइल से पढ़ते हैं. देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें सिमिलर देखते हैं क्या क्या सिमिलर होता है. इसमें सिमिलर क्या क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हेलोजन और हेलोजन सिमिलर होता है. हेलोजन और हेलोजन सिमिलर होता है. हेलोजन ये एक्स आइडेंटिफाइज हेलोजन, और इस हेलोजन के बीचों बीच क्या होते हैं, सोडियम मेटल. इसके बीचों बीच क्या होता है, सोडियम मेटल. इसके बीचों बीच क्या होता है, सोडियम मेटल. ये तो थी बात जहां सब कुछ सिमिलर की बात है. यहां पर जो डिसिमिलर होता है वो क्या होता है बच्चों, वुड्स में दोनों तरफ क्या होगा, आर होगा. फिटिग में दोनों तरफ क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा. और वुड्स फिटिग में क्या होगा, एक तरफ आर होगा और दूसरी तरफ हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होगा. तो हमने सिमिलरिटीज भी देख ली, डिसिमिलरिटीज भी देख ली. सबसे पहली बात आपने क्या ध्यान रखनी है केमिस्ट्री के अंदर, कि मेटल जब भी नॉन मेटल के साथ मिलता है तो वो उसकी तरफ भागता है. वो फटाफट से क्या कर लेता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और उसके साथ के साथ क्या बन जाता है बच्चों, क्या बन गया, 2NaX. सिमिलरली 2NaX, सिमिलरली 2NaX. तो सभी केसेस में हमारा क्या बन रहा है साथ में, 2NaX 2NaX 2NaX.
टू, क्योंकि हमने दो मॉलिक्यूल्स लेके चले। जहां पर वुड्स की बात आती है वहां पर एल्काइल और एल्काइल जुड़ जाएंगे और डबल ऑफ कार्बन एटम हमारे सामने आ जाएंगे। तो जो एल्केन बनेगा वो क्या बनेगा, हायर एल्केन बनेगा। और फिटिक में क्या होगा, दोनों दोनों क्या जुड़ जाएंगे बच्चों, दोनों क्या जुड़ जाएंगे, बेंजीन रिंग जुड़ जाएंगी और क्या बनेगा, बाइफिनाइल और यू कैन से डाइफिनाइल हेयर। और इसमें क्या होगा बच्चों, क्या क्या जुड़ेगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये और ये जुड़ेंगे और क्या बन जाएगा हमारा, इस तरह से सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा बच्चों। अब बात करते हैं, हमने बड़े इंटरेस्टिंग वे में इसको सिंप्लीफाइड वे में हमने इसको समझ लिया। अब बात करते हैं इसको लर्न करने की ट्रिक बताते हो बच्चों। आजकल किसका जमाना है, डिजिटल का जमाना है, स्मार्टफोन्स का जमाना है। और हम सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं स्मार्टफोन में, व्हाट्सएप और फेसबुक यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको याद करने के लिए हम कंसेप्ट याद रखते हैं व्हाट्सएप और यहाँ पर बात करते हैं हम फेसबुक की। देखो कैसे, व्हाट्सएप का डब्ल्यू से याद रखेंगे हम वुड्स रिएक्शन और ए से क्या याद रखेंगे हम, एल्काइल ग्रुप। व्हाट्सएप वुड्स एप एल्काइल ग्रुप। मतलब जब वुड्स रिएक्शन की बात आएगी तो हम क्या यूज करेंगे वहां पर, दोनों एल्काइल ग्रुप, ये भी एल्काइल ग्रुप और वो भी एल्काइल ग्रुप। अब बात करते हैं हम फिटिक रिएक्शन की। फेसबुक मतलब एफ फॉर फिटिक और बी फॉर बेंजीन। हो गया ना बेटा इंटरेस्टिंग। मतलब हमने जो हमारी डेली लाइफ में कितना ज्यादा यूज में आ रहा है, हमने उसको वुड्स और फिटिक, क्योंकि जनरली बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, वुड्स कहाँ से किसके बीच में है और फिटिक किसके बीच में है। ये फिटिक आपको 11th में नहीं पर 12th में बहुत काम आने वाली है, फर्स्ट ही चैप्टर में। तो इसीलिए मैंने आपको बता दी। और वुड्स फिटिक में हमारे दोनों होते हैं, व्हाट्सएप भी होते हैं और फेसबुक भी होते हैं। तो हो गया ना इंटरेस्टिंग इस तरह से नेम रिएक्शन। जो टॉपिक सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है हम उसी को इंटरेस्टिंग बनाने की यहाँ ट्राई कर रहे हैं। Now coming to hydration reaction. The reaction hydration stands for water. The reaction in which addition of water molecule to an alkene or we can say alkyne in the presence of acid. We are using dilute sulfuric acid mostly here and forms ethene to ethanol with the addition of water. Dehydration reaction. This is just opposite of hydration reaction. Here D means removal and hydration means water. Removal of water molecule where in the presence of strong acid with the use of high temperature and forms alkene is known as dehydration reaction. Here you can see ethanol is converted to ethene with the heating in the presence of conc H2SO4. Here water molecule is eliminated, you can say, or removed from the alcohol, parent alcohol, and forms alkene. Here ethanol forms ethene with the removal of water molecule. Let me clear you perfectly. चलिए बच्चों, अब हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन की बारी है। तो हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर, बस ये ध्यान रखना है। और डिहाइड्रेशन, जब भी डी वर्ड आ जाए बच्चों, डिहाइड्रेशन का मतलब है लॉस। डी मतलब लॉस, जो भी होगा। हाइड्रेट वर्ड यूज होता है पानी के लिए, तो हाइड्रेशन एडिशन ऑफ वाटर और डिहाइड्रेशन लॉस ऑफ वाटर। अब हम समझ लेते हैं इसको बड़े प्यार से। बेटे देखो, हमारे पास है मान लिया एल्कीन, हमने उसमें क्या करना है ऐड H2O, क्योंकि एडिशन ऑफ वाटर की बात कर दी हमने हाइड्रेशन। अच्छा, अब ये होना किसकी प्रेजेंस में है, एसिड की प्रेजेंस में। तो हम एसिड के या तो H+ लिखते हैं या फिर आप लिख सकते हैं
डाइल्यूट H2SO4। देखिए H2SO4 बच्चों होता क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को निचोड़ लेता है, बट क्योंकि यहाँ पर हमें हाइड्रेशन करना है इसलिए हमने क्या किया, डाइल्यूट H2SO4 यूज़ किया, क्योंकि डाइल्यूट जब हमने इटसेल्फ ही उसमें पानी काफ़ी सारा दे दिया तो वो उसका डिहाइड्रेटिंग नेचर जो है वो रिवर्स हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जब हम सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए बात कर रहे हैं बच्चों, हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन के बाद अगला स्टेप हमारा मार्कोनिकॉफ और बीटा एलिमिनेशन है, जिसमें आपको हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन को यूज करेंगे। अभी हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन समझाने के लिए मैं सिमेट्रिकल एल्कीन से समझाऊंगी। सिमेट्रिकल एल्कीन मीन्स जहां पर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम। तो अब क्या होगा बच्चों, हम क्या करते हैं, सबसे पहले वाटर को ऐड करते हैं। हमने क्या किया, जो इसके हाइड्रोजन है वो लिख लिए खुल के, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड था पर यहाँ पर डबल बॉन्ड हम नहीं लिख रहे, क्योंकि हमने क्या करना है, वाटर जो है वो OH प्लस और OH नेगेटिव में लिबरेट हो गया, एक तरफ हमें H जोड़ना है, जोड़ देंगे हम, दूसरी तरफ OH जोड़ देंगे। और हमें पता भी है कि हमारा कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट होता है और हमें 4 बॉन्ड की जरूरत है। तो हम सबसे पहले तो इसके चारों बॉन्ड कंप्लीट करते हैं, और चारों बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर H और यहाँ पर OH जोड़ देते हैं, और इस तरह से ये जो इथीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रेशन करने के बाद इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो हाइड्रेशन ऑफ इथीन गिव्स इथेनॉल। अब हम बात करेंगे कमिंग बैक टू रिवर्स रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इसमें हम स्टार्टिंग ही कहां से करेंगे बच्चों, हम इथेनॉल से स्टार्ट करते हैं। इथेनॉल यहाँ पर क्या करेगा बच्चों, ये कॉन्क H2SO4 की प्रेजेंस में इसने यहाँ पर डिहाइड्रेशन करना है, मतलब लॉस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों ही कार्बन से, पहला कार्बन क्या माना जाएगा बच्चों, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। नेक्स्ट रिएक्शन में हम आपको बताने ही वाले हैं। और जो उससे नेक्स्ट कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन से H और OH मॉलिक्यूल बड़ी आसानी से लूज हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्क H2SO4 जो है वो जैसे एसिड जब किसी की बॉडी पे पड़ता है तो उसका जो बॉडी है वो पूरी की पूरी सड़ जाती है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर से जो पानी है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। डेट मीन्स वो उसकी बॉडी के अंदर का जितना भी हाइड्रेटेड पार्ट है वो निचोड़ लेता है। तो कॉन्क H2SO4 जो है वो बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वो पानी उसके अंदर से निकाल लेता है। तो हमारा जो है H2O बाहर निकल गया। अब आप देखिए यहाँ क्या बच गया हमारे पास, कार्बन कार्बन के साथ आपके 2 हाइड्रोजन बच गए। पर क्योंकि यहाँ पर वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसीलिए अब ये जो बॉन्ड है वो कहाँ पर आ जाएगा, टूट के डबल बॉन्ड के रूप में आ जाएगा, और इस तरह से इथेनॉल से दोबारा इथीन कन्वर्ट हो गया। तो इथीन से इथेनॉल बनाना है तो हाइड्रेशन करना है, इथेनॉल से इथीन बनाना है तो हमें क्या करना है बच्चों, डिहाइड्रेशन करना है। जब हमने हाइड्रेशन करना है तो डाइल्यूट H2SO4 लेना है, और जब हमने डिहाइड्रेशन करना है तो हमें कॉन्क H2SO4 लेना है। हाइड्रेशन मींस एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, डिहाइड्रेशन मींस लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। Decarboxylation reaction. This is very simple reaction. In this, D again stands for removal and carboxyl stands for COO group or CO2. In this reaction, the sodium acetate, or you can say sodium derivative of acid, is heated with soda lime. Soda lime is none other than caustic soda, mixture of caustic soda and calcium oxide in the ratio of 3:1. 3 means 75% is caustic soda means sodium hydroxide, and calcium oxide is just 25%. This is just to use as a hygroscopic nature. Calcium related compounds are hygroscopic, means water absorbing capacity is there. They forms sodium acetate is converted to methane and forms sodium carbonate. COO group is removed from here and forms sodium carbonate. Sodium acetate
means ethanoate means 2 carbon is now converted to 1 carbon parent alkane means अगर आप 2 कार्बन वाला सोडियम डेरिवेटिव ऑफ एसिड लेते हैं it will form one less than that alkane, 1 carbon atom less than that parent acid derivative of acid and forms alkene, and this is in the presence of soda lime. Decarboxylation. D stands for removal, carboxyl stands for CO2. मतलब removal of COO group is known as decarboxylation. Very simple reaction. Like we are taking our COONA. This is known as sodium salt of carboxylic acid. So sodium salt of carboxylic acid. This reaction is taken in the presence of soda lime. And what is it? Soda lime. Soda stands for caustic soda. Caustic soda means NaOH. Or it is in the presence of लाइम ऑल्सो. तो यहाँ पर हम लिखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड. एक्चुअली सोडा लाइम में लाइम इसलिए यूज लिया जाता है क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो एक हाइड्रोस्कोपिक नेचर लेकर के चलता है. कैल्शियम रिलेटेड कंपाउंड्स, तो वो वाटर कहीं मिसमैनेज ना कर दे तो वाटर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता है. तो यहाँ पर होगा क्या बच्चों, देखो यहाँ पर हमारा RCOONA कहाँ से क्या निकलेगा, देखिए रिमूवल ऑफ CO2 ग्रुप, COO ग्रुप, और इससे निकल के क्या आ गया आपके सामने Na2. देखिए Na2CO3 निकल गया और बच क्या गया बच्चों, ये बच गया और ये बच गया. सामने क्या आ गया आपके RH. ठीक है, अब इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम. CH3COONA NaOH in the presence of calcium hydroxide heated calcium oxide heat in the presence. हुआ क्या, देखिए ये मिला करके आपका क्या बन गया Na2CO3 और साथ में आपका बन गया CH3 और CH4. मतलब जो कंपाउंड सामने आता है वो क्या सामने आता है, एल्केन. दिस इज एल्केन एंड दिस एल्केन हियर इट इज फॉर्म is methane. So this is known as decarboxylation reaction, which is used for the formation of alkane from the sodium salt of carboxylic acid. Now coming to beta elimination reaction, the type of reaction in which two groups leave from two adjacent carbon atom. One carbon is dead carbon which has some halogen group or you can say functional group attached, and the next carbon, adjacent carbon, is known as beta carbon, and both the carbons remove one component of its like X is removed from alpha carbon halogen and H is removed from beta carbon in the presence of alcoholic KOH and forms alkene. In this reaction, since hydrogen atom is eliminated from beta carbon atom, this is called beta elimination reaction. Also, there is elimination of one hydrogen and one halogen. We can also say this as dehydrohalogenation reaction. Let me clear you on board. Let's clarify beta elimination reaction. Reality shows तो आप लोग बच्चों देखते ही होंगे. Reality shows में क्या होता है? रियलिटी शोज में हर बार हर एपिसोड में एक या दो बच्चे, जो भी उनके रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो एलिमिनेट करते हैं. तो एलिमिनेशन मीन्स एक चीज हट जाना. अब हम उस एलिमिनेशन रिएक्शन को कैसे देखते हैं बच्चों, देखिए लाइक मेरे पास एक कंपाउंड है H और ये आपका आ गया X यहाँ पर फंक्शन ग्रुप हम ले रहे हैं हेलोजन. ठीक है, अब अगर हमें एलिमिनेट करना है तो हमें क्या यूज करना है, साथ में ध्यान रख लीजिए एल्कोहलिक एल्कोहलिक KOH यूज करना है. एक्वस KOH नहीं यूज करना. ये नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ने वाले हैं कि एक्वस KOH न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में यूज होता है, जबकि एल्कोहलिक KOH जो है वो बीटा एलिमिनेशन के लिए यूज होता है. सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि जिस भी
कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप होता है, वो फंक्शनल ग्रुप जो भी डिफरेंट होता है H और C से, दैट इज फंक्शनल ग्रुप, उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? अल्फा कार्बन। और जो उसका पड़ोसी कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं बीटा कार्बन। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी बीटा एलिमिनेशन होना है, अल्फा कार्बन से तो निकलना ही निकलना है, मतलब इस X को तो एलिमिनेट होना ही होना है, साथ में उसका पड़ोसी को भी वो लेके जाएगा जो कि बीटा कार्बन पर होगा, इसीलिए हम इसे बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब बीटा एलिमिनेशन जब होगा तो क्या होगा? देखो HX तो हमारा सामने बाहर निकल ही गया है, साथ में क्या बनेगा बच्चों? देखो देखते हैं हम क्या बनता है। C हमारे पास बच क्या गया? H और H। अच्छा एक और बात, जब भी सिंगल बॉन्ड से एलिमिनेशन होगा तो यहाँ पर क्या होना चाहिए बेटा? देखो अब आपको एक चीज की कमी नजर आ रही होगी कि यहाँ पर 4 बॉन्ड्स कंप्लीट नहीं हो रहे। अगर हम यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दें तो सबके 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए। तो आप ये ध्यान रखिए, जब भी सिंगल बॉन्ड से एलिमिनेशन होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड में, और इस तरह से ये इथीन बन के सामने आ गया। अब ये तो थी बात बीटा एलिमिनेशन की, जब हम सिमेट्रिकल कार्बन की बात कर रहे थे, मतलब 2 थे। अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं हम, और हम बात करते हैं इस तरह से, मैं क्लोरीन या ब्रोमीन जो भी है मैं वो यहाँ लगा देती हूँ, और आप देखिए आपका कंप्लीट कर देते हैं। अब हम अगर यहाँ से एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में एलिमिनेशन करेंगे तो बच्चों क्या होगा? देखो जो जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है वो कहलाएगा अल्फा कार्बन, उसका पड़ोसी क्या कहलाएगा? बीटा कार्बन, उसका पड़ोसी क्या कहलाएगा? गामा कार्बन। क्योंकि ये भी उसका पड़ोसी है इसलिए ये भी क्या कहलाएगा? बीटा कार्बन। यहाँ पर बच्चों 2 तरह की कंडीशन आती है। यहाँ कंडीशन आती है कि ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। डेट मीन्स एक बार हम 2 तरह के प्रोडक्ट सामने आएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम एलिमिनेशन क्या करेंगे, लेफ्ट वाले बीटा कार्बन से करेंगे तो HBr सामने आएगा। हम मान लेते हैं यहाँ -HBr कर दिया हमने, तो जो पहला प्रोडक्ट सामने आएगा बच्चों वो क्या आएगा? देखिए ये निकल गया है आपका, H सामने आ गया, ये निकल गया आपका, H सामने आ गया, HBr निकल गया, और यहाँ पर अगेन CH3। और देखिए अब आपको कुछ कमी नजर आ रही होगी, जब भी सिंगल बॉन्ड से कुछ एलिमिनेशन होगा तो वहां क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड कहाँ होगा? जिस कार्बन से, जिन 2 कार्बन के बीच में से लूज हुआ है। तो डबल बॉन्ड कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। अब आप देखिए आपके बॉन्ड्स क्लियर हैं, और इस तरह से आपका ये प्रोडक्ट सामने आ गया। नेक्स्ट प्रोडक्ट किस तरह का सामने आएगा? देखिए सेकंड प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा आपका इस कार्बन, यहाँ पर अब एलिमिनेशन कहाँ से होगा बच्चों? यहाँ पर एलिमिनेशन होगा इस तरह से। तो हमारा जो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट है वो यहाँ से आएगा -HBr। तो इसमें जो प्रोडक्ट सामने आएगा वो कौन सा आएगा बच्चों? देखो CH3 CH2 CH और CH2। HBr हमारा यहाँ से डिलीट हो गया, एलिमिनेट हो गया। और डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर आ जाएगा। जिन 2 कार्बन के बीच में से एलिमिनेशन हुआ है वहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब जब इस तरह के प्रोडक्ट सामने आते हैं तो हम कहते हैं, अब इसमें से जब भी 2 प्रोडक्ट सामने आए इसमें एक मेजर प्रोडक्ट होगा और एक माइनर प्रोडक्ट होगा। उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है साथ में? सेट-ज़ेप रूल। सेट-ज़ेप रूल क्या कहता है बच्चों? सेट-ज़ेप रूल कहता है कि more predominant will be that product which has less number of hydrogens at the either side of the carbon atom। तो मेजर प्रोडक्ट होगा ये और माइनर प्रोडक्ट होगा हमारा ये। तो इस तरह से आपको
मैंने आपको बीटा एलिमिनेशन बता दिया, जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट रहेगा 12th के लेवल पर भी और कॉलेज लेवल पर भी। ये जो रिएक्शंस जो आज मैं आपको नेम रिएक्शंस डील कर रही हूँ, ये आपको केमिस्ट्री के हर एक स्टेप पर काम आती रहेंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। दीज आर द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस विच आर यूज्ड इन एवरी चैप्टर। ओके, उसके बाद सेड्जेफ रूल भी हमने इसमें एक्सप्लेन कर दिया। Now to Markovnikov's rule. Markovnikov's rule is also known as Markovnikov's addition reaction. In this, generally addition of symmetrical alkenes में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बहुत ही सिंपल रहता है. बट व्हेन वी गोज टू unsymmetrical alkene, we have to learn that electron rich component of the reagent adds to the carbon atom which has fewer hydrogen atoms bonded to it, while the electron deficient component adds to the carbon atom with more hydrogen atoms bonded to it. Like यहाँ हम जब HBr की बात कर रहे हैं, addendum molecule is HBr here, H is positive and Br is negative, then Br goes to dead carbon which has less number of hydrogen atom and H goes to dead carbon which is more number of hydrogen atom. तो ये आपको दो स्टेप के थ्रू आपको बताया जा रहा है एंड इस तरह से दो प्रोडक्ट सामने आते हैं, बट मेजर प्रोडक्ट विल बी दैट विच इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव स्टेटमेंट, मींस लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के पास अगर बी आर जाता है तो दैट इज मेजर प्रोडक्ट एंड माइनर प्रोडक्ट इज, तो टू सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जब बनता है तो वो मार्कोनिकॉव एडिशन को डिफाइन करता है. लेट मी क्लियर यू ऑन बोर्ड आफ्टर एंटी मार्कोनिकॉव डिस्कशन. Anti-Markovnikov is just opposite to Markovnikov. In this addendum molecule, positive part है that goes to dead carbon which has more number of hydrogen atoms and negative part goes to dead carbon which has more number of hydrogen atom and positive part goes to dead carbon which has less number of hydrogen. There is a difference that this proceeds only in the presence of peroxide. That's why we can also say this peroxide and Karash effect also. And in this, one substituted haloalkane is formed. You can say this, so you can see this in this mechanism also. But now I am dealing with just reaction, and I am now telling you in this with the some quick trick also to make this interesting. And these reactions are very very important up to the level of BSc also as well. 11th-12th में तो काम आएंगी, कॉलेज और इससे अपग्रेडेड पार्ट में भी आपको ये रिएक्शन सभी की सभी बहुत काम आने वाली हैं. तो आप इन सब के स्क्रीनशॉट्स भी लीजिए और समझिए भी. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन एज वेल एज यूज्ड एज कन्वर्जन, दैट इज Markovnikov's reaction, anti-Markovnikov's reaction. These are also known as Markovnikov's addition reaction also. तो हम डिस्कस करते हैं. दिस इज ऑलरेडी इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कीन विद द हेल्प ऑफ वाटर. वी कैन से वी कैन यूज हाइड्रोजन हैलाइड और वी कैन यूज अदर सेंस ऑल्सो, HCl, HCN, हाइड्रोजन साइनाइड ऑल्सो. बट नाउ वी विल गिव द एग्जाम्पल ऑफ इथीन विद हाइड्रोजन हैलाइड. नाउ CH2 डबल बॉन्ड CH2. सबसे पहले जब ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, जब आइदर साइड ऑफ द डबल बॉन्ड हमारे पास कार्बन सिमिलर है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. हमारा क्या होगा यहाँ पर, H जो है वो एक के पास चला जाएगा और Br जो है वो दूसरे के पास चला जाएगा. तो ये सिंपली हमारा ब्रोमो एल्कीन बन जाएगा. बट जहां प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है बच्चों, जब इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन हमारे पास होता है, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. ये क्या है, प्रोपीन. प्रोपीन में डबल बॉन्ड के इस तरफ दो कार्बन है, इस तरफ एक कार्बन है, तो इसे हम कहेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन. और जब ये HBr की प्रेजेंस में होता है तो हम कोई रूल अप्लाई करते हैं, दैट रूल इज नोन एज मार्कोनिकॉव रूल. बट इसको लर्न करने की एक ट्रिक देना चाहूंगी, जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पढ़ते थे, उसी तरह इसमें हम पढ़ेंगे नथुलाल
हलवाई, नत्थु लाल हलवाई. Nattu means negative charge goes to negatively charged halide goes to that carbon which has lesser number of hydrogen atoms. मतलब इसमें जो एडेंटम मॉलिक्यूल जो है, एडमटम मॉलिक्यूल जो कि HBr है, उसमें से नेगेटिव पार्ट मतलब ब्रोमाइड आयन विल गोज टू दैट कार्बन विच इज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन गोज टू दैट कार्बन विच इज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो इसमें क्या बन जाएगा बच्चों हमारे सामने CH3 CHBr और CH3. जनरली एक और अगले साल हम पढ़ने वाले 12th में कन्वर्जन्स बहुत सारे, तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम एल्कीन से 2 सब्स्टिट्यूटेड एल्केन बनाते हैं तो उसमें जनरली मार्कोनिकॉव यूज होता है. अब जब कोई चीज बहुत फेमस होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका एक एंटी लाना पड़ता है, उसको प्रोटेस्ट, उसके विपक्ष में एक बंदा खड़ा करना पड़ता है. तो उसके यहाँ पर हमारे पास क्या आया, एंटी मार्कोनिकॉव रूल. एंटी मार्कोनिकॉव में उल्टा होता है. वही सेम सिचुएशन अनसिमेट्रिकल के लिए मैं आपको नहीं बताऊंगी, इसमें सिर्फ मैं आपको अनसिमेट्रिकल डिस्कस करती हूँ. यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एडेंडम मॉलिक्यूल में हमारा नत्थु कह लो आप, इसका मतलब ये है कि नेगेटिव पार्ट गोज टू डेड कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. इसमें टोटली उल्टा होता है. एक और चीज इसमें ध्यान रखने वाली है कि ये जो रिएक्शन है ये पेरोक्साइड, किसी भी बेंजोइल पेरोक्साइड जैसे की प्रेजेंस में होती है, इसीलिए इसे हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं और खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि खराश नाम के साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व हुए थे. यहाँ पर क्या होगा बच्चों, negative part goes to dead carbon which has more number of hydrogen atom and positive part goes to dead carbon which has less number of hydrogen atom. तो इसमें जो हमारा प्रोडक्ट सामने आएगा वो क्या आएगा, CH3 CH2 CH2Br. मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट था 2 ब्रोमोप्रोपेन था और यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट सामने आया है वो क्या है, 1 ब्रोमोप्रोपेन. तो 1 ब्रोमोप्रोपेन मतलब जहां हमें एल्कीन से 1 सब्स्टिट्यूटेड एलोएल्कीन बनाना होगा, हम वहां पर क्या यूज करेंगे बच्चों, हम यूज करेंगे एंटी मार्कोनिकॉव रूल. तो इन दोनों को बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिए. जहां पर नत्थु लाल हलवाई काम आएगा वो है मार्कोनिकॉव, और जहां नत्थु मान हलवाई काम आएगा वहां पर है एंटी मार्कोनिकॉव. और जहां 2 सब्स्टिट्यूटेड बने, एक और निशानी याद कर लीजिए, जहां पर 2 सब्स्टिट्यूटेड हेलोएल्केन का बनाना है वहां पर हम कन्वर्जन्स के लिए वहां पर हम मार्कोनिकॉव यूज करेंगे, और जहां 1 सब्स्टिट्यूटेड बनाना है हेलोएल्केन वहां पर हम एंटी मार्कोनिकॉव यूज करेंगे. आई होप आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंगली ये चीजें समझ में भी आ रही होगी. फ्रीडर-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, दिस इज वेरी सिंपल रिएक्शन. ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, जिसके लिए मैं आपको पहले थोड़ा सा बोर्ड पर आपको हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन भी क्लियर करूंगी और फिर आपको एल्काइलेशन और एसाइलेशन समझाऊंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिफाइन दिस इज अ मेथड ऑफ जनरेटिंग एल्काइल बेंजीन्स. एल्काइल बेंजीन्स मतलब बेंजीन के साथ एल्काइल ग्रुप भी सब्स्टिट्यूट होगा. एंड बेंजीन बाय यूजिंग एल्काइल हैलाइड्स, देखिए एल्काइल हैलाइड्स यूज किए हैं हमने, एंड बेंजीन as reactants in the presence of Lewis acid. AlCl3 acts as a Lewis acid here, such as FeCl3 or AlCl3. Let me clear you on board after the acylation definition. Friedel-Crafts acylation, the reaction of an arene with acyl chlorides or anhydride, acetic anhydrides or anhydrides we can say, using a strong Lewis acid as catalyst. The reaction proceeds via electrophilic aromatic substitution. मैंने जैसे आपको बताया ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए ही रिएक्शन सारी यूज होती है. जैसे कि इसमें बेंजीन के साथ अब आप जब एसिटाइल क्लोराइड यूज कर रहे हैं तो इसका जो ये पार्ट है CH3CO वाला जो पार्ट है
वो कहाँ अटैच हो जाएगा, बेंजीन रिंग से अटैच हो जाएगा, और जो H बेंजीन रिंग से निकलेगा वो इसके Cl के साथ रिएक्ट होकर HCl बना देगा इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। और जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड लेंगे तो वो HCl की जगह CH3COOH बना देगा। तो मैं इसको बोर्ड पर डिस्कस करते हैं। एयरक्राफ्ट एनाइलेशन और एसाइलेशन को समझाने के लिए बच्चों मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, बहुत स्लाइड सा इंट्रोडक्शन हेलोजिनेशन, नाइट्रोजन और सल्फोनेशन टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर देना चाहूंगी। हेलोजिनेशन में क्या होता है, जब हम बेंजीन रिंग के साथ जब हम Cl2, हेलोजिनेशन मतलब जैसे Cl2 को ऐड करना चाहते हैं तो होता क्या है बच्चों, जैसे Cl2 जो है वो दो Cl से मिलके बनता है, तो हमने मान लिया कि एक ये माइनस हो गया और एक प्लस हो गया। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, तो वो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट जो है वो बेंजीन रिंग से अटैच हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है, और वहां से एक H निकल के बाहर आ जाता है। और देखिए होता क्या है, इस तरह से हमारे पास क्लोरोबेंजीन सामने आता है, और साथ में जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, यहाँ से H निकल, जहां Cl ने अपनी जगह बनाई वहां से H निकला और HCl के रूप में सामने आ गया। इसी तरह से ये जो रिएक्शंस होती हैं ये AlCl3 या FeCl3 जैसे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती हैं। इसके बाद इसी तरह से नाइट्रेशन होता है। नाइट्रेशन में OH माइनस और NO2 प्लस होता है, तो NO2 जो है वो यहाँ जहाँ क्लोरीन आएगा वहाँ NO2 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और वो रिएक्शन जो है वो H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। सिमिलरली सल्फोनेशन के अंदर SO3H कंपाउंड यहाँ प्रोडक्ट जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा SO3H, और दैट विल फॉर्म बेंजीन सल्फोनिक एसिड, एंड उसमें जो है वो HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में होती है वो रिएक्शन। नाउ कमिंग टू मेन फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन, दैट रिएक्शन इज लाइक, ये रिएक्शन जो है हमारी किसकी प्रेजेंस में होती है, बेंजीन जो है वो CH3Cl या RX की प्रेजेंस में, मिथाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में AlCl3 की एज अ कैटलिस्ट लेते हैं, लुईस एसिड, या FeCl3 भी ले सकते हैं। होगा क्या बच्चों, ये जो है वो कहाँ अटैच हो जाएगा, यहाँ अटैच हो जाएगा, और यहाँ से जो H निकलेगा वो HCl के साथ। इस तरह से क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ हमारा ये CH3 अटैच हो जाता है, या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, और साथ में क्या बना, तो इस तरह से हमारे सामने क्या आ गया, टोलिन आ गया, या यू कैन से क्लोरोबेंजीन। इसे कहेंगे हम फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल और क्राफ्ट की के थ्रू ये एल्काइलेशन इंट्रोड्यूस हुआ। उसी तरह एसाइलेशन में क्या होगा, हम एसाइल ग्रुप लेंगे। एसाइल ग्रुप में आप RCOCl ग्रुप भी ले सकते हैं, एसिटाइल क्लोराइड, या RCO होल ट्वाइस एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में भी कर सकते हैं। तो जो प्रोडक्ट सामने आएगा वो क्या आएगा बच्चों, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे बेंजोफिनोन। या जैसे आपका यहाँ पर आपका जो भी कंपाउंड आ जाएगा, कीटोनिक ग्रुप इसमें सामने आ गया, और साथ में जो बनेगा वो क्या बनेगा, या तो इसकी प्रेजेंस में बनेगा HCl और इसकी प्रेजेंस में बनेगा RCOOH, मतलब एसिटिक एसिड बनेगा। तो इस तरह से आपने एल्काइलेशन, आप याद रखिए एल्काइल ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड, एसाइलेशन मींस RCO group is substituted। तो these are very simple reaction, इसमें आपको कोई निशानी की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है कि AlCl3 थोड़ा सा लर्निंग पार्ट है, नेम रिएक्शन में थोड़ा थोड़ा लर्न करना पड़ता है। AlCl3 या FeCl3 की प्रेजेंस में होगा, एसाइल ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड ऑन बेंजीन रिंग, एल्काइल ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड ऑन बेंजीन रिंग। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में नेम से ही आपको पता चलता रहेगा कि आपका क्या सब्स्टिट्यूट होना है। तो आई थिंक आई हैव क्लैरिफाइड यू ऑल द नेम रिएक्शंस। बहुत अच्छे से मैंने आपको ट्रिकी वे में और इंटरेस्टिंग वे में बताने की कोशिश की है। होप सो आप लोग इनको अच्छे से लर्न कर पाएंगे। थैंक यू।